Yes. So let us start the work. So today we are supposed to do or revise this chapter, sustainable development. Okay. Very briefly, within 1 minute, I am going to brush up all the things. Then maximum participation will be from your side while answering the questions. Okay. Hope you have revised. Okay. So sustainable development means that development in which development takes place keeping in view the needs of the present generation, but along with that, sufficient resources are expected to be left for the future generations also. Wording may be different, you may write in any manner. When we do the developmental activities in such a manner that by fulfilling the needs of present generation, we take care of the needs of the future generation also. That means resources which are being used in the present time, they are to be used very judiciously and very optimally, means without making their underutilization, without misusing them, without wasting them. We have to make optimum means best possible available use. Okay. Now reason kya hai iska, if we finish all the resources in the present time, then those scarce resources, especially which are non-renewable, especially we can say fossil fuel type resources, coal and petroleum products, there will be no stock of these resources left for the coming children, coming generation. So that is why we need to be careful. Okay? Then we have done one other thing, environment. Environment means our surroundings, all those resources among which we all people are living, all that ambience also means environment, all those resources with which we are surrounded in this planet. Okay. And then जो environment है, that performs many functions for us. All our productive activities take place in this environment. Then whatever we do, whether it is productive or unproductive, whether it leads to generation of garbage or waste, even that also gets accumulated and adjusted and absorbed in this environment. Then environment gives us the scenic beauty also. Natural scenes are also there in this environment only. And then assimilation of all the activities, not only assimilation of wastage, but assimilation of all the activities, everything that is done by us, that takes place in the environment. Okay. Then एक और point is there, carrying capacity. तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब इट कंप्राइजेज टू थिंग्स. एक तो यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लेस देन देयर रेट ऑफ जनरेशन. ठीक है. जितने हम यूज कर रहे हैं वो यूज थोड़ी कम होनी चाहिए और उनका जो रीजनरेशन है या जनरेशन है दैट शुड बी मोर एज कंपेयर टू देयर कंजम्पशन. एंड सेकेंड इज this absorption capacity of the environment should remain more than the creation of garbage. वर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो कि द गार्बेज और द वेस्ट मटेरियल विच वी जनरेट ड्यू टू अवर वेरियस एक्टिविटीज, दैट शुड बी लेस, दैट शुड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एनवायरमेंट. और अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो देन ऑन दिस प्लैनेट सिचुएशन विल बिकम लाइक दैट कि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट. हवा पोल्यूटेड हो जाएगी, पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, तो फिर ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. ये हमारा इसमें मेन था. देन उसके बाद है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज दिस स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये मेन है फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन और फॉर 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो स्ट्रेटेजीज का मेन मतलब है यहाँ पे, स्ट्रेटेजीज मीन्स विच मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू डू दिस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. which methods can be adopted. तो फर्स्ट एक मेथड है by using renewable resources या by using alternatives of non renewable resources. ठीक है. तो alternatives को खोजना चाहिए, उनको अपने प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए. तो जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, स्पेशली लाइक पावर या एनर्जी, तो फर्दर उसके भी दो पार्ट होते हैं, कन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल. तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज अगर पूछा जाए, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वी कैन से कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट. अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं लिखना, वी कैन राइट पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आगे उसके जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो दीज आर कन्वेंशनल सोर्सेज. एंड व्हाट आर एनी अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? बायो एनर्जी, दिस टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, गोबर गैस. ठीक है. ये सारी बायोगैस जिसको बोलते हैं, दीज ऑल आर द दिस नॉन क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल या मॉडर्न. ठीक है. एक और वर्डिंग इसके लिए आ सकती है, विच आर द मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये वाले देने. एक आ सकता है वर्ड विच आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल. ठीक है. तो ये हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद है कि क्लीनर फ्यूल्स. क्लीनर फ्यूल्स में मेनली आ जाता है दिस CNG. ठीक
ठीक है। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म ये याद करना है आपने। तो दैट कैन बी यूज्ड, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि इट लीड्स टू वेरी लेस या वेरी निग्लिजिबल स्मोक, तो ट्रैफिक के लिए ये हेल्पफुल रहता है काम। उसके बाद है हमारा मिनी हाइडल प्लांट्स है, कि बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, डैम्स होते हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन का बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी वो डैमेज का एक रीज़न बन जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू दैट मैनी पीपल दे गेट डिस्प्लेस्ड। और जिन एरियाज़ में बनाए जाते हैं तो एनवायरमेंटलिस्ट दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो जो इंडिया में पेरिनियल रिवर्स हैं वो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स ही पेरिनियल है। और वो हाइट के ऊपर जब डैम्स बनाए जाते हैं तो ये जो प्लेट है, अगर आपको याद होगा 9th में आपने किया था, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो ये सारा जो बेल्ट है, जो एरिया है हिमालयाज़ का, प्लस अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का भी मिला के अपर पार्ट, ये सारा अर्थ को एक प्रोन जोन एरिया है, पूरी बेल्ट, उसमें हम कंट्री को भी नहीं कहेंगे, मतलब पूरा एरिया ही जोग्राफिकली। तो अगर अर्थ को एक प्रोन एरिया में डैम ज़्यादा बनाए जाते हैं तो दे आर ए रीज़न ऑफ थ्रेट ऑल्सो, मतलब नहीं होने चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स दिस बिग डैम्स, इट इज़ बेटर टू गो अहेड विद द मिनी प्लांट्स, मिनी हाइडल प्लांट्स, छोटी छोटी रिवर्स के ऊपर जहाँ भी पॉसिबल हो सके। ये ऐसा नहीं कि सभी जगह बनाने ही बनाना है, जहाँ भी पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, जहाँ जो पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। देन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस है, तो इसका मतलब सिर्फ ये स्मोक के लिए नहीं है, किसी भी काम के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वट एवर इज़ अवर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी हम करते थे। जैसे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, 10th क्लास में भी यू हैव रेड कि इन आर कल्चर ट्रीज आर गिवन वेरी मच इम्पॉर्टेंस, पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो वो पूजा करने, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि अवर ऋषिज एंड मुनीज या अवर पीपल फोर फादर्स, दे वर वेरी वाइज, कि उन्होंने क्या कर दिया, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि ये करो, ये ऐसा करने से ऐसा होगा। बट अगर साइंटिफिकली देखें तो ऑल दीज थिंग्स वर एनवायरमेंटली फ्रेंडली थिंग्स। पीपल से ऑक्सीजन ही हमेशा मिलती है, ठीक है, तुलसी से अदरवाइज वेरी अदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं उस चीज़ के। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो उन्होंने जोड़ दिया रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ, कि लोग एटलीस्ट इसी बहाने से करेंगे। बट उनका पर्पज़ एक ही था कि दीज आर साइंटिफिक थिंग्स, तो इनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इनको बचा के रखेंगे, जितना पेड़ों को लगाएंगे उतना ही अल्टीमेटली प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट होगी। फिर और कोई अपना हेल्थ के लिए बीमार होते हैं तो कोई अपना ट्रेडिशनल तरीके से उसका इलाज करें। कहने का मतलब कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ कम जाएं या सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ कम जाएं, और जो भी अपना पुराना तौर तरीका है उसको अपने लाइफ में अगर अडॉप्ट करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू इन्हांस दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद है बायो कंपोस्ट है, फील्ड्स में, फार्म्स में जो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जो मेन्योर होती है उसी को यूज़ करें। मेन्योर गोबर जो होता है उसी से जो खाद बना के यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो ये सारे ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करें, तो ये एक देज आर ऑल्सो वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड या सॉइल। फिर उसके बाद है बायोपेस्ट, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को मारने के लिए भी देसी तरीके अपनाएं बजाय केमिकल जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं। फिर अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन को थोड़ा चेक करें, मतलब यूजलेस कंजम्पशन के ऊपर चेक लगाएं। अगर आपको एक बड़ा अच्छा एनालिसिस आ रहा था, उसमें बताया कि 2008 और 9 में पूरे वर्ल्ड में देयर वाज ग्लोबल डिप्रेशन। 2008-9 के आसपास पूरे दुनिया में मतलब डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। बट एट दैट टाइम इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, तो वहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत कम हो गई और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एक तरह से थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। बट इवन एट दैट टाइम इंडिया में सर्वाइवल रहा, ठीक ठाक काम रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली पीपल हैव द हैबिट ऑफ सेविंग। हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज अभी भी सारे लोग सेविंग की ओर ज़्यादा ध्यान करते हैं कि नहीं थोड़ा कम करो खर्च, सेविंग करो। तो उसका मतलब क्या है कि अगर सेविंग है हमारे पास, दैट मीन्स वी हैव मनी इन द टाइम ऑफ नीड ड्यूरिंग रेनी डे। रेनी डे मतलब सच में नहीं कि बारिश हो गई, रेनी डे का मतलब मुसीबत का टाइम आता है, तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ दैट सेव्ड मनी। तो वो सेव्ड मनी तभी हो सकता है अगर हम अपनी सेंसलेस कंजम्पशन के ऊपर चेक करें। ये नहीं कि मार्केट गए और विदाउट थिंकिंग, विदाउट डेलिबरेटली थिंकिंग कि दिस थिंग इज रिक्वायर्ड इन अवर लाइफ और नॉट, डू वी हैव द नीड और नॉट। वैसे ही नहीं उठा के लें कि ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर सी लग रही है, तो उसको चलो खरीद लेते हैं, पैसे हैं तो खरीद लेते हैं। उस चीज़ को रोकना चाहिए। वी शुड रेजिस्ट दैट अर्ज कि अननेसेसरीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। वी शुड
बाय सर्टेनली वी शुड बाय, बट वो चीज़ ले जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। किसी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या दिखावे के लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, रादर वी वेस्ट अवर मनी और अपनी सेविंग रिड्यूस करते हैं और अपनी मनी को वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब दीज आर ऑल्सो द वेज जिससे हम, एंड सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं कि कोई फैक्ट्री वालों ने ही ठीक करना है या कोई ट्रैफिक नहीं ठीक करना है, स्मोक कम करना है, मतलब इन अवर डे टू डे लाइफ वट एवर वी कैन डू, जो भी ट्रेडिशनली कर सकते हैं वो करें, तो अवर लाइफ कैन बी developed in a sustainable manner. ये सारा, this is the heart and soul of this chapter, ठीक है। Now in this chapter आपको क्वेश्चन 1 मार्क टाइप भी आ सकता है, 3 या 4 मार्क्स टाइप भी, और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। जैसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन कैन बी देयर कि एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो फिर आपने वो स्ट्रेटेजीज हेडिंग देके देन यू हैव टू एक्सप्लेन। 2-3 मार्क्स में कोई आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, अब हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, यू मे गेट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू फॉर्म, ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं, या करेक्ट द स्टेटमेंट मीन्स इनकरेक्ट लाइन विल बी गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड कि रीड दिस लाइन, इज इट राइट और नॉट, इफ नॉट राइट या इफ इट इज इनकरेक्ट देन करेक्ट इट। तो फिर वो तभी आप कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि गलती कहाँ पर है, ठीक है। या मैच द कॉलम, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या मैच द कॉलम बना के एक पेयर डिफरेंट पेयर है, फाइंड द ऑड वन आउट, एक पेयर डिफरेंट है, उस तरह से भी आ सकता है। तो अब हम सारे उस टाइप के कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। तो फर्स्टली ट्रू ब्लैंक्स की फॉर्म के क्वेश्चन हैं, ठीक है। If you find any line important, you may note down that line. Otherwise, quite simple. Dash resources are those which can be replenished. Options मैं बोल देती हूँ. Dash resources are those which can be replenished. Replenished मतलब which can be fulfilled again. Option है renewable या non-renewable. Renewable, ठीक है. Renewable resources get to replenish themselves automatically. Then second, carrying capacity of environment refers to the situation when generation of waste dash exceed the absorption capacity of environment. Option A does या does not. Does not आएगा, ठीक है, कि जब हमारी generation of waste does not exceed the rate of या absorption capacity of environment, तो does not आएगा. After that next is dash pollution causes hypertension, asthma, respiratory problems. Options हैं air pollution या water pollution. Air pollution, ये सारे एयर पोल्यूशन, तो ये air pollution. उसके बाद नेक्स्ट इज डैश फॉरेस्ट्री एम्स एट रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ऑप्शन है सोशल फॉरेस्ट्री या इकोलॉजिकल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री मतलब एट ए लार्ज स्केल, एट ए मास स्केल व्हेन पीपल दे ट्राई टू प्लांट द ट्रीज. इकोलॉजिकल होता है जब हम साइंटिफिक तरीके से सोच के कि ये ट्री की ज़रूरत है या इसका ये हर्बली इसका ये फ़ायदा हो सकता है, तो वो एक इंटेंशनल होता है. सोशल का मतलब कि सारे लोग पेड़ लगाएं, मैक्सिमम पॉसिबल लगाएं. Next is alkalinity and salinity of soil is caused by dash water logging या water pollution. Water logging. Salinity पानी खड़ा रहता है ना जहाँ पर, तो उसके करके जो soil की degradation होती है, तो water logging. Okay. Dash is the strategy of sustainable development. Options है shift to organic farming या output efficient technology. हाँ, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. दूसरा जो आउटपुट एफिशिएंट है वो आउटपुट नहीं होना चाहिए था, इनपुट एफिशिएंट होना चाहिए था, ठीक है. ओके, सो शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज डैश इज ए सिचुएशन रेफरिंग टू ए ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. ऑप्शन है ओजोन डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, दे हैव गिवन द डेफिनेशन एंड वी आर बीइंग आस्क्ड गिव वन टर्म. ऐसा भी आ सकता है, कोई डेफिनेशन ऑप्शन नहीं भी होगा तो आपको दिया होगा सेंटेंस दिया है कोई डेफिनेशन कि गिव सिंगल टर्म फॉर दिस, तो मतलब आपने 1 और 2 वर्ड्स में उसका देना है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल डैश गो ए लॉन्ग वे इन कम्बैटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ऑप्शन है कैन या कैन नॉट. कैन. Population control can go to a long way in helping the environmental, in solving the environmental degradation. Next, sustainable development requires the use of dash
आउटपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी या इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी? इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वेरी राइट। ओके, अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। अब आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986। दिस इज ट्रू। ये वैसे भी याद कर लो, 1 मार्क में वैसे भी आ सकता है। व्हेन वाज दिस एक्ट पास्ड लिख लो, यू कैन राइट डाउन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड in 1986. Students at home, they are also advised to note down this line. Environment Protection Act was passed in 1986. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है civilization rises with urbanization, but environment suffers from degradation. दिस इज ट्रू, ठीक है। जितना अर्बेनाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन मीन्स एडवांसमेंट होती है, एक रिफाइनमेंट ऑफ इन द वेज ऑफ लिविंग होता है, बट साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है। वेरी राइट। नेक्स्ट इज इट इज इसेंशियल टू चेक राइजिंग पॉपुलेशन इफ एनवायरनमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड। फिर से सुनो मैंने क्या बोला है। इट इज इसेंशियल टू चेक राइजिंग पॉपुलेशन इफ एनवायरनमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड। ट्रू है ये, पॉपुलेशन को कंट्रोल होना ही चाहिए ना, तभी एनवायरनमेंट बचेगा। दिस इज ट्रू, ओके। owing to the emission of greenhouse gases, the earth's surface is becoming increasingly warmer. ट्रू है ये, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज के करके ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी बढ़ती है, तो दिस इज ट्रू लाइन, ओके। Ozone depletion occurs owing to the excessive use of cooling substances in air conditioners and refrigerators. True है, this is perfectly true. Okay, next is sustainable development requires the use of environment friendly sources of energy. This is also true. Okay, industrialization is a bane as it offers a variety of things to consume. फिर से सुन लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए बेन। एक होता है बून, एक होता है बेन। बून का मतलब एक वो हिंदी में ऐसे नहीं करते वरदान या अभिशाप, तो ये बेन अभिशाप नेगेटिव वाली साइड पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इट इज ए नेगेटिव थिंग एज इट ऑफर्स ए वेराइटी ऑफ थिंग्स टू कंज्यूम। फॉल्स है ये, ठीक है। उसके बाद है मैकेनाइजेशन हैज रेज्ड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट हैज इक्वली रेज्ड द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये काम तो बढ़िया हो रहे हैं बट शोर शराबा भी ज़्यादा हो रहा है इसके करके। ओके, वेरी फाइन। आपको तो सारा ही आता है, ये चैप्टर इतना आसान है कि सारे कर लेते हैं, हाँ? चलो अब मैच द नहीं, मैच नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? ऑप्शंस है लिविंग एलिमेंट्स ओनली, सेकंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स ओनली, थर्ड बोथ ए एंड बी, लास्ट है नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी, बिकॉज लिविंग भी होते हैं नॉन लिविंग भी होते हैं। ओके, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ लिविंग एलिमेंट्स? प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर लिविंग एनिमल या लिविंग बींग्स या बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और नॉन लिविंग में यस, एयर, सॉइल, वाटर, ये सारे मिनरल्स, ये सारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ओके, which of the following is not considered as an element of environment? Not considered as element. Option है air, land, weather, electricity. Electricity. बाकी के तीनों elements of environment है। एयर, लैंड एंड वेदर एनवायरनमेंट भी अपने आप होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप नहीं होती, बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ऑप्शंस आर, रीजन ऑफ नॉइज पोल्यूशन बताना है। ऑप्शंस है डोमेस्टिक सीवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एमिशन ऑफ गैसेस, इंडस्ट्रियल मशीन्स। यस, इंडस्ट्रियल मशीन, मशीनों के चलने से नॉइज होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? ऑप्शंस आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, वेरी राइट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाइज द नीड ऑफ, आगे ऑप्शंस हैं प्रेजेंट जनरेशन ओनली, फ्यूचर जनरेशन ओनली, बोथ ए एंड बी, none of these. Both A and B. Very right. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शंस है इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, लास्ट है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज सारे ही चाहिए ये हमें। फिर से सुन लो अगर लाइन नहीं क्लियर हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शंस है इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिडक्शन इन लेवल ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो सारे ही होने चाहिए टू हैव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एन इंक्रीज, ये वाला नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है, यू ऑल कैन नोट डाउन। एन इंक्रीज इन रियल इनकम, an increase in, but you can note down, an increase in real income along with equitable distribution, along with equitable distribution is called आगे ऑप्शंस हैं, प्लीज नोट द ऑप्शंस ऑल्सो। ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। I repeat all the options again. First, economic growth. Second, economic development. Third, sustainable development. Fourth, and none of these. And can anyone tell? सोच के बताइए। Economic? नहीं। अभी ये इसका मतलब हिंट मिल गया, एक चला गया तो तीन में से तुक्का लगाओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये तुक्का तो चल गया है बट मीनिंग नहीं क्लियर होगा कि इसका तीनों चारों का वर्ड्स का मतलब क्या है। अब इसको पहले समझ लो। एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी मतलब रिसोर्सेज को भी केयरफुली यूज करते हैं। बट क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है व्हेन ओनली नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री राइजेस फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ हमारी इनकम बढ़ती है, कंट्री की इनकम कह लो, जीडीपी कह लो, नेशनल इनकम कह लो, पर कैपिटा इनकम कह लो, कुछ भी कह लो उसको, मॉनिटरी इनकम, ठीक है। तो कंट्री की व्हेन इनकम ऑफ ए कंट्री वेदर नेशनल और पर कैपिटा इंक्रीजेस फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब ऐसे होता है तो देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। if national या per capita income of a country rises या increases for a long period of time, then it is called this economic growth, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू, आगे लिखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंट्री की इनकम तो बढ़े फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो पहले वाला सेम ग्रोथ वाला भी नहीं, बट उसके साथ ही साथ इट शुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली ऑल्सो, जिसको हम आम ही बोलते हैं ना। आपने याद किया होगा प्लानिंग वाले चैप्टर में इक्विटी वाला ऑब्जेक्टिव हमने किया था। तो इक्विटी का मतलब गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर शुड रिमेन मिनिमम पॉसिबल। दैट मीन्स कि भी नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सबकी पूरी होनी चाहिए। इनकम का डिफरेंस इतना ना हो कि एक आदमी भूखे मर जाए और एक को समझना है कि मैं क्या खाऊं या क्या ना खाऊं, ठीक है। तो वो मिनिमम होना चाहिए गैप। दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन भी सब लोगों में, मीन्स नेशनल इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट शुड गो इन द हैंड्स ऑफ ऑल द पीपल। कोई ऐसा आदमी ना हो जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स कि सोसाइटी में जस्टिस की और अटेंशन इज बीइंग पेड। तो जब ये भी साथ में होता है और साथ साथ इनकम बढ़ती भी है तो देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब सिर्फ इनकम बढ़ती है तो देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पर क्या है, रियल इनकम वर्ड का मतलब होता है कि जो मनी हमारे पास है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ लेके आप बाजार जाते हो तो 100 रुपीज़ में मान लो यू आर एबल टू बाई ओनली 5 थिंग्स, कोई 5 चीज़ें आप लेके आते हो। तो व्हेन वी से कि दीज 5 थिंग्स आई हैव परचेज, तो वो 5 थिंग्स की फॉर्म में वो जो चीज़ें हैं वो बन जाएगी आपकी रियल इनकम।
अगर 100 रुपीज़ लें, नोट लें, तो कहेंगे ये हमारी मॉनिटरी इनकम है, मतलब कैश की फॉर्म में हमारे पास पैसे हैं, इनकम है, मनी की फॉर्म में है। बट जब उसी मनी से जाके हम 5 चीज़ें खरीद के ले आ रहे हैं, तो वो 5 चीज़ों की फॉर्म में जो हमारी इनकम है, दैट विल बी नोन एज अवर रियल इनकम। अब देखा जाए, एक तरफ आप 5 चीज़ें रख दो, एक तरफ 100 रुपये रख दो, बात एक ही है। एक फिजिकल फॉर्म में है, एक मनी की फॉर्म में है। तो इकोनॉमिक्स में दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों का नाम अलग अलग दे दिया जाता है। मनी को कह देते हैं मॉनिटरी इनकम, नॉमिनल इनकम पैसों की फॉर्म में, चीज़ों की फॉर्म में उसी बात को कहें तो हम कह देते हैं रियल इनकम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर्स कंट्रीब्यूट्स टू, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रिवर्स में जिसको फ्लो कर देते हैं, दैट लीड्स टू, ऑप्शंस हैं एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वेरी राइट। प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज, ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आई थिंक इट हैज गॉट रिपीटेड, चलो फिर से सुन लो। प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, increased urbanization, all of these, very right, okay। नेक्स्ट है हमारा, एक ही है, लास्ट है गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, सेकंड है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, थर्ड है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन ठीक नहीं बन रही है, क्योंकि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी स्ट्रेटेजी है और जो शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये स्ट्रेटेजी। तो यहाँ तो ऑप्शन ये बनाते, ऑप्शन मतलब बोथ बी एंड सी, या तो ये होता। जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है वो नहीं है, मतलब यहाँ वो भी एक तरह से कह भी सकते हैं, फिर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम उसको भी ले लेते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट मान सकते हैं उसको भी, मतलब गलत नहीं है वो भी एक तरीके से, तो फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है यहाँ, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कॉलम बना के एक मैच किया हुआ है, एक करेक्ट है, इसमें से करेक्ट पेयर है, बाकी के इनकरेक्ट है, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है। From the following set of column first and second, choose the correct pair of statement। एक दिया है फिजिकल एलिमेंट्स, उसके सामने दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, ये गलत है। फॉसिल फ्यूल रीन्यूएबल नहीं होते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स में प्लांट एनिमल नहीं होते हैं, फिजिकल तो मतलब नॉन लिविंग चीज होगी ना। एक दिया हुआ है एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज का काटना, उसके सामने दिया है एन एग्जाम्पल ऑफ मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। और एक दिया हुआ है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इन फ्रंट ऑफ दैट इट इज गिवन लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लास्ट वाला करेक्ट है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब ही होता है रिडक्शन इन द या डिटीरियोरेशन इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड या सॉइल। सॉइल वर्ड हो, लैंड हो, बात एक ही है। तो दिस वन इज द राइट पेयर, बाकी सारे रॉन्ग है। एक दिया था सेकंड लास्ट, एक्सेसिव ट्री फेलिंग, एग्जांपल ऑफ मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये एक्सेसिव ट्री फेलिंग का यहाँ तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि किस रीजन के करके हो रही है। नेचुरली भी हो सकती है या ह्यूमन एफर्ट के करके भी हो सकती है। तो अगर तो ह्यूमन रीजंस के करके, फिर तो ये भी ठीक है कि मिसयूज कर रहे हैं, बट यहाँ से ये लाइन नहीं क्लियर हो रही। अगर ऐसा कोई डाउटफुल सा हो ना, आपको मतलब लगे थोड़ा सा, तो फिर आप देखो कि दो तो बिल्कुल गलत हो गए, दो ऑप्शन आपके पास बचे फ्रॉम विच यू हैव टू डिसाइड। उसमें से भी देखो कि बेटर कौन सा बन रहा है। कई बार होता है ना कंफ्यूजन उसी में ही होता है, दो तो निकल जाते हैं, दो में कंफ्यूजन होता है, तो फिर आप उसमें से भी देखो कि जो एग्जैक्ट जो रीजन एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है वो वाले को आपने करना है, फिर मतलब थोड़ा सा कम वाले को नहीं आपने लेना है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, एनी स्टेटमेंट वुड बी गिवन, उसके आगे लिखा होगा इज इट ट्रू और फॉल्स, फिर आगे लिखा होगा इफ फॉल्स देन जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन, कि अगर आप या डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन।
तो उस क्वेश्चन में 2 पार्ट बन जाते हैं। एक में तो आपने कहना कि हाँ जी अग्री या डिसअग्री, या ये राइट है कि रॉन्ग है, ट्रू है कि फॉल्स है। हाफ मार्क उस चीज़ का होता है। उसके बाद अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो रेस्ट 2.5 मार्क्स विल बी देयर फॉर योर वैलिड रीज़न। रीज़न का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखना, अपनी स्टोरी, अपने विचार लिखना शुरू कर दो। आपने ऊपर आंसर में आप डिसअग्री करते हो और नीचे आपका पॉइंट एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हो, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप डिसअग्री लिखते हो तो आपका रीज़न ये होना चाहिए कि हाँ आप क्यों डिसअग्री हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपने, सोच के पहले ट्रू फॉल्स करो। और वैलिड रीज़न का मतलब कि लॉजिकली वो रीज़न सही होना चाहिए। अपने वो दिल की कहानियाँ नहीं लिख देनी कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ। मैं ऐसे सोचने से नहीं, जो एग्जैक्टली कारण है उस चीज़ का वही आपने देना है फिर, ठीक है। अच्छा, जैसे एक जस्ट फॉर एग्जांपल है कि people from rural to urban areas, they migrate most of the time in search of better opportunities, चाहे एजुकेशनल है या इकोनॉमिक है, कुछ भी है। तो नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड कि भाई इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट वन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन कि व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज तो इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके आगे बताइए कि भाई आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से सोच के, जब आते हैं लोग विलेजेस से शहरों में आ जाते हैं तो कैसे एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन में आता है वो, या कैसे उसको लीड करता है। यस कुरलीन। When the people migrate from rural to urban areas, the use of resources increases because more people are migrating to urban areas. Therefore, the resources become less, and they वेरी can't राइट, be renewable. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। Yes, migration from rural to urban area leads to environmental degradation because when more and more people will be concentrated in one particular area, the per head availability of resources to a particular person will be less, and they'll not be able to make full use of that resource, and output will not be sufficiently generated. यस, परफेक्टली राइट आंसर। तो जब पीपल कम फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया तो स्ट्रेस ऑफ पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया इंक्रीजेज। ज़रूरत से ज़्यादा लोग है ना, रिक्वायर्ड मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्ट लिविंग इन दैट वेरी एरिया। तो फर्स्ट स्ट्रेस कम्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द सिविक या पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दैट सिटी। जैसे किसी इलाके में मान लो 500 लोगों के रहने का जब सिटी प्लान किया गया तो मान लो सीवरेज का ही है, सीवरेज की पाइप्स ही हैं, तो 500 लोगों की लोकेलिटी के लिए वो ठीक है। अब उसी लोकेलिटी में आके 200 लोग और रहने शुरू हो जाएं, माइग्रेटिव आके लेबर रहनी शुरू हो जाए, अब उस सीवरेज अरेंजमेंट के ऊपर स्ट्रेस आएगा, सारा वेस्टेज पानी सब वो पाइप्स छोटी हैं, बट नाउ नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग दैट फैसिलिटी, दैट नंबर हैज़ इंक्रीज्ड। तो फिर क्या हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, सीवरेज ब्लॉक होता है, सभी लोगों को परेशानी होती है। ऐसे ही जो एरिया फॉर लिविंग है, एरिया तो उतना ही है सिटी का, तो यहाँ तो फिर एक ही हो सकता है कि एक्सपेंशन ऑफ सिटी होती है, बाहर बाहर वाले इलाकों में सिटी बढ़ता जाता है, बट वो दैट टेक्स टाइम। जो एक लिमिट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू लिव विद इन द सिटी, जहाँ भी उनके काम की जगह होती है उसके आसपास ही रहना चाहते हैं। तो फिर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, एरिया कम है, एक एक रूम में कई कई लोग रहने शुरू कर देते हैं, एक एक घरों में, मतलब कोई रेंट पे आ जाते हैं, स्ट्रेस ऑन पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीजेस, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, स्कूल्स में जाने वाले बच्चों का नंबर बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों में काम करने वालों का नंबर बढ़ जाता है, खाने पीने के सामान की और सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, सब तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करती है, डिमांड फॉर फैसिलिटीज़ ऑफ बसेज एंड ट्रेन्स, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हर टाइप की फैसिलिटी, सिविक अमेनिटी, पब्लिक फैसिलिटी, इट गेट्स ओवरबर्डन। तो जब ओवरबर्डन है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है। मतलब इस टाइप के, ये क्योंकि चैप्टर इज टू इजी, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बताइए भी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अच्छा, एक है कि हाउ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हम तो वी आर प्रेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अगर सस्टेनेबल है तो एक उसका ऑपोजिट भी तो होता ही है ना, नॉन सस्टेनेबल, जिसमें हम एनवायरनमेंट की ओर ध्यान नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अभी मैंने हिंट दे दिया बीच में कि एक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज होती है, बट इन नॉन सस्टेनेबल में अनजुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। दूसरा हो सकता है कि जो सस्टेनेबल है दैट टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, नॉन सस्टेनेबल डज नॉट टेक केयर ऑफ
या डज नॉट पे अटेंशन टू फ्यूचर जनरेशन। फिर हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस इन सस्टेनेबल साइड, और दूसरी तरफ हो जाता है हार्म टू एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस। ऐसे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट्स बना देने हैं। ओके, ये तो इसका हो गया। अच्छा, अब एक यहाँ पे सैम्पल पेपर में 6 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी 2 स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब आप देखो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे टोटल, 2 मार्क्स की डेफिनेशन, बाकी बच गए 4 मार्क्स। तो आगे 2 स्ट्रेटेजी से हैव बीन आस्क्ड, इसका मतलब 2 + 2, आपने फिर 2 पॉइंट, कोई आपकी चॉइस के जो आपको ठीक लगे, यू कैन गिव दोज 2 पॉइंट्स विद गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्क्स 2 ही अलॉट होने हैं, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है एनी 2 पॉइंट्स बना के। ओके, उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन exceeds the rate of regeneration, it leads to reduction in carrying capacity of the environment। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिसोर्स का रीजनरेशन। तो आगे दे आर आस्किंग कि डिस्कस द रैशनल ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। रैशनल का मतलब कि लॉजिक, कि इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो बताइए। मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी की ही डिफाइन करके उन्होंने दे दिया है, उसका फिर एक्सप्लेन करना है, मतलब यू हैव टू इलेबोरेट दैट टर्म इन योर ओन वर्ड्स। तो फिर क्या बनेगा, क्या सोच सकते हैं आप कि अगर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है तो देन दैट मीन्स कि इफ एट द प्रेजेंट रेट, एट द प्रेजेंट स्पीड रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड यूटिलाइज्ड, देन दोज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विल गेट finished, they will come to an end, they will get depleted। तो that means कि quite possible in our lifespan we may face the crunch of those resources। अब है ही नहीं, अब सोच के देखो, कल को हमें कोई कह दे कि पेट्रोल खत्म हो गया दुनिया में से, गुरलीन को हंसी आ रही है, सोच के देखो कि अगर कोई हमें ये कह दे तो ना किसी की गाड़ी चलेगी, ना किसी का स्कूटर चलेगा, ना कोई बस चलेगी, ना कोई ट्रक चलेगा, चीज़ों की सप्लाई नहीं होगी, जो सामान दूसरी स्टेट से आता है यहाँ पर, दूसरे कंट्री से आता है, तो कुछ नहीं चलेगा, जो जहाँ है स्टैंड स्टिल सिचुएशन, एक मतलब रुक जाएगा सारा कुछ। तो अगर हम इसी तरह से यूज़ करें तो एक